بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملک بھر سے آج خبریں آ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وجاہت سعید خان صاحب, ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ, اور ہم سب اس وقت تلاش ہماری جاری ہے اور بہت کچھ کیا جا رہا ہے ہماری عدم موجودگی میں, اور کافی اس وقت پریشانی کے حالات ہیں پاکستان میں, اسلام آباد میں, ہمارے آبائی شہروں میں, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں آخر آنن فانن یہ اتنا سیاسی درجہ حرارت اتنا بڑھا دیا گیا ہے. اور یہ صرف جرنلسٹوں کے ساتھ نہیں, صحافیوں کے ساتھ ہی نہیں, بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے عدالتوں سے ریلیف ملنے کے باوجود, عدالتی احکامات کے باوجود, اس معاملے میں ابھی بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دوبارہ سے زیرو ٹالرنس پہ آ گئی ہے. اس ساری صورتحال پہ بھی بات کرنی ہے. اور پھر عمران خان صاحب کی وہ پوری کی پوری گفتگو جو کہ سپریم کورٹ میں وہ اپیئر ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے, ورچوئل حاضری تھی ان کی, اور بہت زیادہ اس دن سختی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً ماشاء اللہ تھا, اور خاص طور پہ کورٹ روم نمبر 1 میں تو کوئی پر نہیں مار سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود اب سے کچھ دیر پہلے وہ ساری گفتگو جو عمران خان صاحب کی ہوئی اور مختلف آنریبل ججز کے درمیان جو مکالمہ ہوا, جو بحث ہوئی, وہ ساری کی ساری اب ایک فائل کی صورت میں آ چکی ہے. یہ ساری صورتحال پہ ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں, کوشش کریں گے آپ کو میکسیمم خبریں دیں. تو پہلے ذرا چلتے ہیں وجاہت سعید خان صاحب کی طرف, ابتدا ان سے کرتے ہیں, اور چونکہ وہ بھی آج کل زیر عتاب ہیں اور ان کے بھائی کو, ان کے بردر ان لا کو خطرہ ہے, وہ بھی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے, اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھی محفوظ ہیں یا پھر غیر محفوظ ہیں. جی وجاہت صاحب. جی السلام علیکم صاحب بھائی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم دوسرے ڈاکٹر صاحب. glad we're doing the gang of four. Usually ذاتیات پہ میں تو پرانا رول فالو کرتا ہوں کہ the reporter should not become the story. یہ ہمارا کام نہیں ہے, مگر when we are made to become the story چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ضروری ہے. ویری امپورٹنٹلی آپ پہ صابر بھائی, آپ پہ ڈاکٹر معید, اور مجھ پہ جو پرچے ہم نے پچھلے گینگ آف فور میں ڈسکس کیے تھے, وہ جو اللہ دتا اور محمد رفیق تھا جو صبح اٹھ کے ڈنڈ مار کے مے 9 کے جتھے میں گھس گئے تھے, اور پھر انہوں نے ہماری خفیہ ویڈیوز دیکھی تھیں. وہ ایک تو پروسیڈنگ لگی ہوئی ہے, چل رہی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. میوٹنی کے جو چارجز ہیں آپ کے خلاف, میرے خلاف, اس کی وہ دفعہ 110 لگتی ہے جو پنشبل بائی ڈیتھ ہے, سزائے موت ہم تینوں کو ہو سکتی ہے اگر یہ کرتے رہیں یہ حرکتیں. مگر چلیں, ہمارا یہ کام ہے, جو ہم نے کام یہ شروع کیا تھا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ the story comes first. ارشد شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے. پاکستان کے جب سے میں نے جرنلزم شروع کیا ہے, 97 جرنلسٹ 9/11 سے جس دورانیے میں نے شروع کیا, 97 journalists have been killed in the line of duty in our country. انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے. اور آف کورس ہمارا پروفیشن بھی کتنے جرنلسٹ ابھی تک 97. ہاں, تو آپ 3 کو گن لیں تو پھر 100 پورا ہو جائے گا. اللہ خیر کرے. I think they are right on track. نہیں جی, جو مطلب ویسے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شہادت قبول کرے, مگر یہ میرے جو کالیگز ہیں اور میں ہوں, this is not about us. This is about our loved ones. And ایک عزت آبرو بھی ہوتی ہے. ہم پٹھان لوگ ہیں جی, ہم تو بہن کے گھر جا کے پانی بھی نہیں پیتے جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میرے جو بردر ان لا ہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سال میں شاید ایک بار عید پہ بات ہوتی ہے, اور ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ ہی از انوالوڈ ان مائی لائف, ان مائی ورک. اینڈ اس بیچارے بچے کو ٹارگٹ کرنا, جو ترسوں میں ماشوانی صاحب کے بھائی کو اٹھایا, پرسوں میں گل صاحب کے بھائی کو اٹھایا, کل مجھے یہ خبر آئی, ٹپ آف ملا, مے بی آئی واز لکی
कि शायद ऐसे लोग हैं जो अब भी इज्जत करते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई ये हो रहा है, ऑर्डर्स आ गए हैं, अगर निकाल सकते हो उससे निकालो। इस वक्त मेरा जो बहनोई है, जो मेरा भाई है, वो ही इज अंडरग्राउंड, एंड अभी चंद सेकंड्स पहले RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये ट्वीट भी किया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है और ये इमीडिएटली खत्म होना चाहिए। मगर आपकी जो बात थी साबिर भाई, वो बजा है, क्योंकि सिर्फ हमारे इर्द गिर्द ये घेरा नहीं डाला जा रहा, ये एक डेस्परेशन है, ये क्रैक डाउन पार्ट 2 एक नजर आ रहा है, क्योंकि ये इनके आखिरी दिन है। ये मैं कोई तड़ी नहीं लगा रहा कि इनके आखिरी दिन है, इनके वाकई आखिरी दिन है। इनकी पोस्टिंग्स का मौसम आ गया है, इनकी ट्रांसफर्स और प्रमोशंस का मौसम आ गया है, इनकी एक्सटेंशंस फिर से लेने का मौसम आ गया है। DGI की जो एक्सटेंशन है वो सितंबर में खत्म होती है। DGC की जो पोस्टिंग है वो भी अगस्त सितंबर में, फौजियों की 2 सीजन में पोस्टिंग होती है, इनकी इसमें होगी। और ऑफ कोर्स आपके जो काजी फायजीसा साहब हैं, जो आप कह सकते हैं शायद इन्हीं के बंदे हैं, तो हम उन्हें इन्हीं की भर्ती में, इन्हीं की ट्रांसफर में काउंट करेंगे। तो वो भी, उनकी भी जो एक्सटेंशन जो मिलनी है, नहीं मिलनी, ऑब्वियसली जिस तरीके से रिजर्व सीट्स का केस जा रहा है और फुल बेंच ने जो चढ़ाई की है इन पे, और इन पे एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से, मतलब मिनल्ला से, मुनीब से और मंसूर अली शाह से फायरिंग होना शुरू हो गई है। तो ये जुडिशल साइड पे भी ये कॉर्नर हो रहे हैं, और अंदर से, अभी मैंने इस पे थोड़ी देर पहले व्लॉग किया, अंदर से जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, उसके दौरानिये में और उसके बाद जो पल्स रिपोर्ट फौज की निकलती है, उसमें ये बताया जा रहा है कि सर आपने जो ये फतह श्रीनगर और फतह दिल्ली जो आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर जो आपने बनाया था, जो ऑपरेशन जमान पाक था, वो नहीं हुआ। वो बंदा अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पॉपुलर है, गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अभी भी लोग आप ताने देते हैं फॉर्म 47 के, अभी भी फौज की रेपुटेशन हैज नेवर बिन लोअर, और इकोनॉमिक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सर ऐसे नहीं होना। तो इसमें ये जरूर बोला गया बॉस को, और बॉस के लिए मैंने बॉस की यूनिट की टोपी मंगवाई है, ये यूनिट बॉस की यूनिट की टोपी है बाय द वे। तो बॉस हमेशा मेरे कंधों पे मेरे साथ होता है, बट बॉस को ये नहीं बोला गया कि बॉस आप बहुत खराब हैं। ये तो फौज में डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है, माशाल्लाह से हमारी डिसिप्लिन फौज है। मगर बॉस को ये जरूर बोला गया कि बॉस जो बाकी आपने रखे हुए हैं इनकी जीरो परफॉर्मेंस रही है। तो बॉस ने जो है वो जीरो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा डंडा दिया इन्हें, और कहा कि प्रेशर है और तुम लोगों के पास वक्त ज्यादा नहीं है। तो ये इसलिए आप रिसर्जेंस देख रहे हैं, ये डेस्परेशन देख रहे हैं, इसलिए फायर वॉल्स की बातें हो गई हैं, इसलिए ख्वाजा सिराओं को डिप्लॉयमेंट की बातें हो गई हैं, और इसलिए ये ऑल आउट आप कह सकते हैं। लास्ट वो नहीं होता, वो जो नसीम शाह और वो दूसरा जो उसके साथ गया था अफरीदी, ये जो लास्ट डेस्परेट होता है कि बॉलें कम है, रन्स बहुत ज्यादा है, जो लपेटना है लपेट दो। मसला ये है कि ये ना नसीम शाह वाली इनके पास कैपेसिटी है, ना शाहीन अफरीदी वाली। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि मुझे भी एक दोस्त ने बताया कि ये वही जो बात है वो उसको मैं आगे एक शेयर कर लूं कि असल में यही है कि ये अंडर ट्रांसफर थे, और अंडर ट्रांसफर पोस्टिंग सिलसिला चल रहा है, और इनको ये कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी वाकई जीरो रही है। तो इन्होंने बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं, इन्होंने हम पे चढ़ाई शुरू कर दी और बंदे उठाना शुरू कर दिए, और जिसका मजीद रिएक्शन आ रहा है। और आज मैंने एक और चीज़ भी देखी, वो भी आपसे शेयर कर लें कि एक नकवी साहब आए थे हमारे, बरतानिया भी गए थे और UAE भी होके आए हैं और यूरोप भी शायद गए। तो वो एक लिस्ट लेके गए थे और इंटरपोल वालों से भी उन्होंने एंगेज करने की कोशिश की और कुछ और एजेंसी से। तो उन्होंने असल में जो चिट्ठियां लिख रहे हैं ये इनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा और उसमें कोई इनको कामयाबी नहीं हो रही। तो उन्होंने फिर कहा कि पहले ही आपके यहाँ जो बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं और रिपोर्ट्स जितनी भी आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, आप अपनी उसको सिचुएशन को ज़रा बेहतर करें। और उसका फिर उन्होंने ये जाकर ये किया है कि हमारे पासपोर्ट्स रिन्यू नहीं हो सकते, किसी के भी बाहर जो बैठे हैं उनके पासपोर्ट्स रिन्यू नहीं होंगे, उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और ये आज चिट्ठी भी कर दी है। अगेन एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि नजर आ रही है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब।
देखिए आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी साबिर। मैं सोच रहा था कि ये पासपोर्ट ख्याल इनको क्यों आया है, तो बुनियादी तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके नाम इंटरपोल को दिए जाएं, तो इंटरपोल पे कोई कार्रवाई करे। उसमें इनको कामयाबी नहीं होगी। हम जो अमेरिका में हैं उन हमें तो खैर एडिशनल फायदा ये है कि अमेरिकन अथॉरिटीज जो हमें इंटरपोल को जूते की नोक के ऊपर लिखते हैं वो उसको वैल्यू कोई नहीं देते बिल्कुल। अमेरिकियों का अपना ही एक एंगल है देखने का। लेकिन हमें इंटरपोल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपना पे कोई लॉयर लेके कि हमारे खिलाफ जो चीज कर रहे हैं ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ज़ाब्ते में आती है और ये बुनियादी तौर पे हम जर्नलिस्ट हैं और हमें इस तरह से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैं समझता हूँ कि वजाहत ने बहुत अच्छा एनालिसिस पेश किया है कि इस वक्त जो डेस्परेशन है वो क्यों है। यानी आप देखें, मैं ये सोचने की बात है ना कि गुज़िश्ता 72 घंटों में सडनली ये डेस्परेट एक्ट में आ गए, दोबारा मार धाड़ पकड़ना, जैसे शहबाज गिल के भाई को इन्होंने उठा लिया है। अब उनका, मैं वैसे शहबाज गिल से अक्सर पूछा करता था कि यार तुम्हारे भाई वगैरह वहां पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज मेरे तो बहन भाइयों ने कभी पाकिस्तान की डायरेक्शन ही 2.25 साल में इख्तियार नहीं की, वरना वो हर 2-3 महीने के वहां पे आती थी। मेरी बहन भी आती थी, वो यूके में है, भाई मेरा कोई एक मिडिल ईस्ट में है, एक मेरा कनाडा में है, एक इस तरह से, तो वो लोग तो जाते ही नहीं उस तरफ। तो शहबाज गिल के ने मुझे कहा कि यार मेरे भाई का दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं सियासत से, वो बात भी नहीं कहीं करते, कोई डिस्कशन करते। मैंने उनको मना किया हुआ। तो मेरे ज़हन में फिर भी था कि ये सेटिंग टारगेट है, और जब ये हुआ तो मैंने इस पर 10 मिनट का कमेंट भी किया था एंड आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिकॉज अब आप ठीक है, वजाहत ने एक्सप्लेन किया कि इनका सीजन है पोस्टिंग ट्रांसफर्स का, उस वजह से ये डेस्परेट है। अगर आप इसको इंस्टीट्यूशनली देखें तो बिल्कुल एक टोटल फेल्ड स्ट्रेटजी इसकी है कि इकोनॉमिक्स में और साइंस में कहा जाता है द लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स और ड्वेंडलिंग रिटर्न्स। यानी आप शुरू में कोई अगर एप्पल पाई खाते हैं या कोई आप गाजर के हलवे की प्लेट खाते हैं तो आपको मजा आता है, दूसरी तरह उसकी थोड़ी देर बाद खाएं फिर काम आता है। अब 10 प्लेट आप गाजर के हलवे की खाते हैं तो यू डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, आप बीमार हो जाते हैं। अब ये सब चीजें कर चुके हैं, ये लोगों को उठाना, दरवाजे तोड़ना, सुबह के 3 बजे वीकोस वहां चले जाना, शुरू में इसका एक इनको रिजल्ट डेफिनेटली मिला होगा। लेकिन अब ये जो रेन ऑफ टेरर है, इसके जो रिटर्न्स है ना बड़े मार्जिनल है। तो वजाहत ने सही एक्सप्लेन किया कि एक डेस्परेशन के फेज में चले गए हैं, और एक ऐसे डेस्परेशन के फेज में चले गए हैं जहां इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। बिकॉज ये केसेस देखें इन्होंने बनाए हुए हैं, हर खाली हम पे थोड़ा बनाए, हजारों लोगों पे बनाए हुए इन्होंने। तो एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन इनकी है और उस डेस्परेशन में ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी कितनी देर तक ये फेज चलेगा, मेरे ख्याल की ये बहुत देर चल सकेगा। मुझे ये समझ आ रही है कि बहुत देर नहीं चल सकेगा। गिल साहब कभी व्यू ले लें कि क्या हो रहा है ये। जी गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने और मोईद ने एक्सप्लेन किया, उससे पहले वजाहत साहब ने भी कहा कि बेसिकली तो डेस्परेशन है, और डेस्परेशन का लेवल वो आ गया है कि 2 लेवल से बेसिकली। पहली स्ट्रेटजी पूरी थी, जो परेशानी होती है वो ये होती है कि पहली पूरी स्ट्रेटजी थी, और जो लोग बिल्कुल काम करते थे ना, इमरान खान साहब के करीब काम करते थे, वो भी मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग, जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे ना, तो कई दफा छोटी छोटी खबरों पर मैं एज अ स्पोक्स पर्सन रिएक्ट करता था, जवाब देता था। साबिर साहब, आप जैसे मंजे हुए सहाफी मुझे अक्सर कहते थे कि यार ये छोटी छोटी चीजों में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस रिस्पॉन्ड नहीं करता, नहीं करना चाहिए, लेट इट गो। कुछ चीजों को वेल लेफ्ट भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मुझे कहते थे हर चीज का जवाब देना है। अच्छा, तब मुझे भी बात समझ नहीं आती थी। अब मुझे समझ आई कि हमारी, क्योंकि मोईद अक्सर ये एनालिसिस करते हैं कि पिछले 75 साल में हमने आउटसाइड पाकिस्तानियों को देखने की इनवर्ड ही रखा है। आउटसाइड किसी कौम से मिलने की, देखने की, समझने की, किसी और मजहब को समझने की, कहीं से इंटरेक्शन करने का मौका ही नहीं देते मासेस को, लार्जर पॉपुलेशन को। तो पाकिस्तान में झूठ पर लोग यकीन करना शुरू हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हकीकतन ये बिलीव करती थी, और ये जो सारे क्योस में ये फंसे हैं कि इमरान खान कोकेन लेता है, ड्रग्स करता है। ये मेंटल लेवल और इंफॉर्मेशन लेवल समझें। इमरान खान दुरुस्त था कि बेहुदा से बेहुदा बात भी कोई कहे ना कि मोईद पीरजादा साहब मार्स पे हैं, तो मोईद पीरजादा साहब को हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लोगों का म्यार इतना ज़हनी नीचे कर दिया हो कि इनको बताना चाहिए कि यार मैं मार्स पे नहीं हूं, अभी कोई ह्यूमन बीइंग मार्स पे नहीं गया, ये आपको किसी ने गलत बताया है। कोई बेहुदा से बेहुदा बात भी आपके बारे में कहे तो हम अक्सर सोचते हैं यार इसका क्या जवाब देना है। ये तो कोई भी, हर एक बच्चे को भी पता होगा कि ये दुरुस्त नहीं। आपको पता है अभी तक
जब मैं उधर हॉस्पिटल में था तो ये इन्होंने एक वीडियो जारी कर दी, एक मेरी तरह का बंदा कहीं से पकड़ के ले आए, फिर उसको बच्चे मिलवाते रहे। वो मेरा तो कोई बच्चा नहीं, वो पता नहीं कहां से इन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, वो 2-3 बच्चे उसको मिल रहे हैं उस बंदे को। अभी तक बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं जब मैं मिलता हूँ कि आपके बच्चों का क्या हाल है। वो मेरी एक वालदा वहां पर ले गए व्हील चेयर पे बिठाकर, अच्छा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी मेरी वालदा बन के। तो शुरू में मैं समझता था, लेकिन अब ये हालात देख करके हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो सब कुछ किया ना, ये इस सोच पर किया कि ये कोकेन लेता है बंदा, ये ड्रग्स लेता है, इसको हमने उधर डालना है जाके सेल में, और इसने 48 घंटे बाद हमें कहना है कि मुझे तो कोकेन की सप्लाई मेरी खत्म हो गई है, तो मैं साइन करने को तैयार हूं। बताएं, नवाज शरीफ ने तो छोड़े क्या एनआरओ किया था, मैं एनआरओ लेता हूं, आप मुझे बताएं आपने क्या करना है। तो मैं तो अब मैंने जब मुझे इन्होंने पकड़ा, ये मेरे से पूछते थे, मैं इन्हें बताता था कि भाई वो एथलीट है, वो बंदा हमसे दुगनी उम्र का है, दुगनी से भी ज्यादा चले, दुगनी उम्र का है वो बंदा, और वो बंदा जो है वो जितनी तेज चलता है, जितनी उसकी बॉडी में, और जितना कंसिस्टेंट है। फिर मैं इन्हें साइंटिफिकली बताता था कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो किसी मोमेंट ऑफ टाइम बहुत एक्टिव होते हैं, किसी मोमेंट ऑफ टाइम वो इनएक्टिव होते हैं, किसी टाइम वो बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं। अच्छा, आप उसमें डॉक्टर है, मेडिकल उसमें डॉक्टर एक इंफॉर्मेशन आपको मैं कर दूं कि उसमें सिर्फ ये नहीं था कि ये कोकीन ये मांगेगा, नहीं, ये था पूरी जो थीसिस था वो उसमें था कि ये जो शहरयार अफरीदी ठीक है, शहरयार अफरीदी सा और मुराद सईद सा और एक आध बंदा और है, नाम भूल गया मैं, कि असल में ये कोकीन और इस तरह की चीज़ें लाते हैं और ये बाकायदा तौर पे ये लेते हैं खान साहब। और जब हम इनको, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बाकायदा तौर पे ये रिकॉर्ड पे ला चुके थे ये बात कि इससे 48 घंटे के अंदर अंदर ये इसकी सारी हवा निकल जाएगी। तो मैं साबिर जो आपको बात कह रहा था, अब आप सोचें कि मुल्क की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर उनका एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है 4 साल बंदा, अगर उसके बारे में ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है और बिलीफ है, और आप सोचिए कि हर वक्त उसके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, पूरी एक सारा कुछ होता है, उसके बाद भी अगर ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है और इस पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और उस बिलीफ के ऊपर पूरी पॉलिसी ऑर्केस्ट्रेट कर दी गई, और जब वो निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा उसमें। अब जैसे आपने शहरयार अफरीदी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि उनकी मुलाकात खान साहब के साथ बीइंग चीफ ऑफ स्टाफ, मैं आपको बता सकता हूं कि फ्रीक्वेंट नहीं थी। मीन जैसे दूसरे वुज़रा मिलते थे वो भी उसी तरह मिलते थे। हाँ, मुराद सईद की मुलाकात फ्रीक्वेंट थी या और कुछ लोगों की मुलाकात, तो शहरयार की मुलाकात होती थी, लेकिन जैसे अली मोहम्मद खान हुए, शहरयार साहब हुए, इनकी मुराद सईद जितनी फ्रीक्वेंट मुलाकात तो खान साहब से नहीं होती थी। लेकिन वो तो अब पहला थीसिस तो ये था, वो तो हो गया फेल। अब हमें पता नहीं हम किधर जाए। दूसरा थीसिस क्या है? दूसरा थीसिस ये है कि जनाब पाकिस्तानी कौम को कितना भी कुटो, कितना भी मारो, इन्होंने बाहर नहीं निकलना, और जिसके किसी रिश्तेदार को पकड़ लो उसने बैठ जाना है, उसने बोलना बंद कर देना है। तो बस ये इनके ऊपर, ये कभी हिस्ट्री में ये पंजाबी तो खुसूसी कभी बाहर निकले नहीं, इन्होंने कभी रिएक्ट किया नहीं, ना इन्होंने करना, इनके साथ जो मर्जी करो। अब ये दूसरा थीसिस ये है। अब सोचें, सिर्फ ये सोच लें कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, 12.5 करोड़। अब अगर तो इनका ये थीसिस दुरुस्त है तो चलो फिर तो काम इनका चल गया, लेकिन अगर ये थीसिस जो है वो 0.0009% कहीं गलत हो गया और उस 12, 13, 14 करोड़ पॉपुलेशन में से, मैंने 12 कह दिया, 14, 15 करोड़ पॉपुलेशन होगी पंजाब की, अगर 25 टोटल है तो उसमें से छोड़े आप 50 लाख, उसमें 1 लाख बंदा भी कहीं निकल आया और आपको 10-20 बंदे मारने पड़ गए और उसके ऊपर एक और रिएक्शन हो गया, तो फिर आपने किधर जाना है? तो खुदारा अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी से इनको बता देता हूं कि माएँ अपने बेटों को शहीद होने के लिए बॉर्डरों पे भेजती हैं, मैंने भी अपने भाई को भेज दिया है। आपने जो भी आप करेंगे, मैंने तो पहले दिन से हमेशा कहा कि मैं अपने इदारे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो ऊपर बैठे लोग गलत पॉलिसियां बनाते हैं उनके ऊपर मैं उनके पॉलिटिकल रोल के ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूं, करता था, करता रहूंगा। आप कुछ भी करेंगे, यहां भी मोहित को पता है हमारी जान को खतरा है, इन पर क्या कुछ नहीं हो चुका, मेरे पर या आप दोस्तों के ऊपर क्या कुछ नहीं। तो जो हमने हामी भरी है कौम के साथ सच बोलने की, वो हम तो पूरी करेंगे। आप खुद मेडल देते हैं ना एक दूसरे को, किसी को निशाने हाजिर मिलता है जो बहुत ही ज्यादा
अपना बहादुर होता है, दिलेर होता है, किसी को कोई और मिलता है, आप हम में से ही है ना, कोई ऐसा थोड़ी है ना कि हम किसी और कौम से, आप किसी और, हमारे भाई भतीजे चचा कजन्स आप हम में से ही है ना। तो अगर आप ये बहादुरी रकम कर सकते हैं तो हम सिविलियन क्यों नहीं कर सकते? तो जनाब हम भी तैयार हैं। आपका जो बैटल ग्राउंड है वो और है, हमारा बैटल ग्राउंड और है। आपने वतन की जो सरहद होती है जिसके ऊपर इंच इंच के दिफा करने पे हमारे जान जो है, जिन पे हमें फख्र है, मैं हर वीलॉग में कहता हूँ, हर वीलॉग में जिस पर मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप को क्रिटिसाइज करता हूं, उस पर मैं साथ कहता हूं कि मुझे अपने फौजियों पर, मुझे अपने इदारे पर, मुझे शहीदों पर, उनके खून के एक एक कतरे के हम जो है वो, मैं तो ये कहता हूं कि कर्जदार हैं और उनके खानदानों के सामने ताजीम से हमारे सर झुकते हैं। तो वो एक एक इंच का दफा करते हैं। तो जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, जो सिविलियन राइट्स हैं, जो सिविलियंस के मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रूल ऑफ लॉ है, उसके लिए यूनिफॉर्म हमने पहन रखा है, उसके कस्टोडियन हम हैं, उसकी हिफाजत हमने करनी है। तो आपको, अब मुझे कैसा लगेगा अगर कहीं पर बॉर्डर पर गोली चले, तो मुझे कैसा लगेगा कि मैं वहां से, मेरा जो वहां पर फौजी खड़ा है वो भागा है बंदूक लेके, मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह से मुझे पता है आप भले मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहां से एक कदम पीछे हटूंगा ना तो आप भी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। ये मैं अपने मिलिट्री की लीडरशिप को कह रहा हूं, आप भी अंदर से मेरी तभी इज्जत करेंगे जब आप कहेंगे कि यार ठीक है, गिल मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई बहुत लंबे चौड़े, आपने गौर किया होगा कि अब जब से मेरा भाई अगवा हुआ है, पार्टी के जो बड़े बड़े पैंच है खामोश है, ज्यादातर ने ट्वीट करने की भी जसारत नहीं की कि कहीं साहब बहादुर नाराज ना हो जाए कि हमने गिल के भाई को उठा लिया है तो हम ट्वीट ही कर दें। तो जनाब हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें पता है कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग जो हैं उनको आप ऑन बोर्ड कर चुके हैं, इमरान खान को माइनस करने की आप तैयारी कर चुके हैं। सजा इस टाइम इमरान खान के लॉयलिस्ट होना है। और मैंने जैसे आपको कहा कि कल मुझे किसी सहाफी ने भेजा कि जनाब आपकी पार्टी में से टोटल आपके भाई के अगवा के ऊपर 5-6 लोगों ने ट्वीट किए हैं, इससे ज्यादा लोगों ने ट्वीट नहीं किए, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? तो मैंने आगे से उन्हें कहा कि यार मैं हैरान हूं कि 5-6 ने कर दिए। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता था, जब मैं अदालत जाता था, मुकदमा था, तो ये एक अरशद शरीफ बोला करता था, एक शहीद और एक मोहित पीरजादा बोल, इसको भी बुला के अगलों ने कहा था कि भाई तू बोला तो तुझे ये कर देंगे। पार्टी में से इमरान खान के अलावा एक दो और लोगों के अलावा तो बंदों ने सबने डिसोन कर दिया था। तो जनाब तब भी गुजारा कर लिया था। अब भी अगर अल्लाह ने मेरे भाई को जिंदगी दी हुई और उसने इस दुनिया में रहना हुआ तो अब भी गुजारा करेंगे। तो इसलिए मामला बड़ा सीधा है साबिर साहब, बड़ी सादा बात है। हम सबका एक रिजॉल्व और कमिटमेंट है। यकीन कीजिए ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी उस चीज के लिए नहीं। इमरान खान को देखते हैं कि वो कैसे डट के खड़ा है। मुझे बहुत सारी बाकी लोगों से एक्सपेक्टेशन ना कभी थी, ना कभी है, ना आगे होगी। और मुझे पता है उनकी मजबूरियां, मुझे पता है कि उनको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उन्होंने वो काम करना है, उतना करना है। उनको बड़क मारने को कह दिया जाता है बड़क मार देंगे, उनको बड़क मारने को नहीं कहा जाएगा वो बड़क नहीं मारेंगे। तो जितनी बात कही जाती है उतनी होगी, उससे आगे नहीं। मजाजर मशवानी है, उसके 2 भाई उठा लिए, पूरा खानदान उसका जो है वो दाढ़ के नीचे रखा हुआ है, लेकिन मजाल है कि कोई उसके ऊपर अभी तक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से आया, आपने देखा होगा। ये मैं इस फोरम को इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग एनालिसिस कर सकेंगे। ये उन लोगों का, सियासी लोगों का कसूर नहीं है, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा। आप सोचिए कि पेनिट्रेशन कितनी है। यही पेनिट्रेशन अदलिया के अंदर है, यही पेनिट्रेशन जर्नलिस्टों के अंदर है कि कोई जर्नलिस्ट जो है वो अरशद शरीफ के लिए 1-2 को छोड़ के बात ही नहीं करता। जुडिशियल उसके लिए कोई बात ही नहीं करता कि जनाब वाला जुडिशियल जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए उसके साथ क्या हुआ। और आज वही अरशद शरीफ जो कीनिया गया था, आपको याद है, अपनी जान बचाने के लिए, असाइलम ही था ना। असाइलम चलो किसी जगह पर आप लिख कर अप्लाई कर, तो बेसिकली तो ठीक है, मैं और डॉक्टर साहब असाइलम पे नहीं है, वजाहत असाइलम पे नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्रीन कार्ड थे, लेकिन कंसेप्चुअली तो हम तीनों भी असाइलम पे है ना। हम भी तो इस टाइम लावतन हुए हुए हैं ना, हमारे पास भी तो कोई, हम अपने मुल्क में तो नहीं जा सकते वापस हम चाहकर। तो बुनियादी तौर पर अब इन्होंने जो नया देखें किया है वो मुझे लग ये रहा है कि जो पिछले दिनों एक्टिविटी हुई है यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी में, खुसूसी मैं ट्रैवल करके यूरोप गया हूँ, आपको याद है, वहां पर बर्पा किए एहतजाज, और या कोई और वजह हो सकता है, कोई और वजह भी हो, लेकिन उसके बाद मुझे लगा है कि इनके पासपोर्ट ब्लॉक करो, इनका ट्रैवल खत्म करो, क्योंकि जैसे ही हमारे पासपोर्ट ब्लॉक होंगे तो हम ट्रैवल नहीं कर सकेंगे ना, तो मामला खत्म हो जाएगा। इसका तो ये फ्रस्ट्रेशन भी है। पासपोर्ट ब्लॉक वाला पॉलिसी आपने फोर्स की है शहबाज गिल? अब मुझे पता नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके सामने रखा है कि अभी
मैं क्योंकि होके आया हूं पिछले हफ्ते और वहां पर 3-4 मुल्कों के अंदर प्रोटेस्ट किए, और मोहित साहब को पता है कि आइंदा मेरे अगले चंद दिन में इससे बड़े प्लान थे उसमें यूके और दूसरे मुल्कों में। तो उसमें अगर कहें ना कि ये पासपोर्ट वाली पॉलिसी जो है 80% रोल हमारा ही है। हाँ, ये नहीं ये, और मैंने आज अपने वीलॉग में कहा, मैंने कहा यार देखें, एक सेकंड मुझे पता है मेरी बात लंबी होगी, लेकिन एक सेकंड मैं कहूं यार, देखें हमारे $30 अरब आता था हमारे पास रेमिटेंसेस का, $30 अरब एक्सपोर्ट से कमाते थे। एक्सपोर्ट में वो $30 अरब है, वो साफी नेट नहीं है, उसमें हम पहले धागा शागा कहीं कुछ इंपोर्ट करते हैं, फिर 30 अरब का एक्सपोर्ट करते हैं, तो कोई 15 अरब की एक्सपोर्ट रह जाती है, तो टोटल हमारी 45 अरब का टोटल हम पैसा कमाते हैं। तो सबसे बड़ा कमाने वाला हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है 30 अरब का। अब इसमें जो आटे में नमक के बराबर आप जैसे हम जैसे लोग जिनको चलें कहीं ना कहीं किसी स्किल की वजह से वीजा मिल गया और ग्रीन कार्ड मिल गया और आगे, आपके ज्यादा लोग कंटेनरों में बंद होके, बॉर्डर क्रॉस करके, पैसे देके, जान पे खेल के, समुद्र की लहरों के हवाले अपनी जिंदगी करके, ज्यादातर बेचारे मर जाते हैं उसमें से गुजरते हुए। जो बच जाते हैं वो यूरोप की किसी बंदरगाह के ऊपर जाकर किसी साहिल पे जाके गिरते हैं, वहां उनको पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आपको पता है, फिर वो किसी ना किसी तरह से असाइलम लेते हैं, कुछ करके वो वीजा लेके कागज बनवाते हैं, कई साल की मेहनत के बाद पासपोर्ट बनता है उनका। उस सारे प्रोसेस में दे डू नीड पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो आपकी बैकबोन है, क्योंकि वो वहां पैसा कमा के पाकिस्तान भेजते हैं। ये सारा गुजरात, सारा मंडी बहाउद्दीन, सारा मीरपुर, ये जो सारा पैसा उन्होंने वापस डंप किया है वहां जाके, जो भी उनको, क्योंकि जाहिर है पढ़े लिखे बहुत नहीं होते, जो पढ़े लिखे जैसे अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, वो तो वैसे पैसा वहां नहीं जाके इन्वेस्ट करते, दे नो के बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैपिटल वेंचर मार्केट क्या है, कहाँ हमने वहां पर, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, जिसने तो कारोबार कर लिया उससे भी पैसे कमा के वापस आप उनके पासपोर्ट, हम लोगों की वजह से, आखिरी जुमला, हम लोगों की वजह से उन सबको सजा दे रहे हैं यार। हमारे नाम लिख के पासपोर्ट हमारे कैंसिल कर देने थे कि साबर का, वजाहत का, मोहित का, गिल का पासपोर्ट जी कैंसिल, को 2-4 और होंगे लोग, 10 होंगे, 20 होंगे, आप उनके नाम लेके नोटिफिकेशन निकाल दें। पूरे पाकिस्तानियों को आप सजा दे रहे हैं, उनको जो मुल्क को चलाते हैं। तो गिल साहब मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट भी कैंसिल करा देंगे? नहीं, वो नहीं करा सकते, आप अकलमंद थे, हमें पता नहीं। मुझे अब वैसे अपने आप से सवाल करता हूं कि ये क्या खन्नास था दिमाग में कि जी किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं लेना, अपने मुल्क का रखना। कर सकते हैं मैं छोटी अंग्रेजी में पेट्रियटिज्म कुछ लोग कहते हैं। एक मिनट का मेरा दोस्त, मैं और मेरा दोस्त एक जो इनकोलॉजिस्ट है, नाम मैं उसका नहीं लूंगा, उठाया जाएगा बेचारा, तो वो यहाँ अमेरिका में इनकोलॉजिस्ट है, हम इकट्ठे ही, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था मेडिसिन की, मैं अपना पोस्ट डॉक कर रहा था, हमारा ग्रीन कार्ड भी आगे पीछे इकट्ठा ही आया, फिर पासपोर्ट की अहलियत भी कई साल, कोई 10-15 साल पहले इकट्ठे बनी। तो जब पासपोर्ट की अहलियत बनी कि पासपोर्ट ले सकते, तो वो अप्लाई कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से तालीम याफ्ता है, पढ़ा है, बाद में उसने चूज किया था कि उसने बाहर आना, उसने अपना जो भी एनओसी लेके वो बाहर आ गया, तो उसने मुझे उसने मुझे कहा कि आप पासपोर्ट ले लें, तो मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं लेना, मैंने सिर्फ पाकिस्तान का। तो उसने मुझे उस दिन कहा, उसने कहा आपको भी झटका नहीं लगा सर, मैं तो अंदर रह के पढ़ के आया हूं, जिस दिन आपको झटका लगा ना आपका पैट्रियटिज्म सारा निकल जाएगा, अभी आपको झटका नहीं लगा तो आप किसी दिन मेरी बात याद रखेंगे, आप पासपोर्ट ले लें। तो आप देखें सारी उम्र इस मुल्क पे हम तनकीद करते रहे अमेरिका पे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में ये कर दिया, अब हम यहाँ पनाह लिए बैठे, किससे पनाह लिए बैठे? उस मुल्क से जिसका गला फाड़ फाड़ के मोहित साहब जनाब पाकिस्तान की फौज, अमेरिका ने ये कर दिया, ये जनाब साम्राज्य जो है उसने हमारे खिलाफ ये किया, और आज पनाह किसने दी हुई है? वैसे शर्म नहीं आती हमें? आप कभी शर्मिंदा होते हैं मोहित पीरजादा साहब, जो आप एनालिसिस करते हैं? मैं भी शर्मिंदा होता हूं आईने में देख के कि किससे अपने आप से ही पनाह लिए बैठे हैं हम, अपने आप से, वो अपना आप ही है ना, उसको कुछ और तो नहीं कह सकते। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं कि मेरी अमेरिकन पावर के हवाले से जो क्रिटिसिज्म है पैक्स अमेरिकाना की, वो अभी भी उधर ही है, बिकॉज़ मैं तो स्टूडेंट हूं इंटरनेशनल रिलेशंस का। वो ठीक है, उस पर मैं नहीं बात कर रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूं अमेरिका पे। वो ये है कि अमेरिका के अपने ट्रबल्स हैं और हम, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूं जो साबिर शाकिर साहब करते रहे सारी उम्र, आप करते रहे, मैं करता रहा, कि अब हम अपने आप से बना लिए बैठे हैं। मैं हारी वो पॉइंट आपका सही है, लेकिन जो पाकिस्तान में रेटरिक है अमेरिका के हवाले से, मेरा वो रेटरिक कभी भी नहीं था।
میں پاکستان میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ ہمیں اسرائیل اچھا وہ تو کو ویسے ہی recognize- ڈاکٹر صاحب ویسے ہی انہوں نے ازراہ تفنن بات وہ میں کی ہے، اصلاح آپ کو تفنن کا وہ میں امریکہ کے تو اپنے ایشوز ہیں نا جو فکر ہے. نہ کریں نہیں، فکر نہ کریں میں ڈاکٹر صرف صاحب. اس کی طرف میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو باقی بات انہوں نے کی نا کہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو پاکستان کے لوگوں کو دیا گیا ہے، وہ جو ذہنی پسماندگی ہے وہ آج جو ہمارے حالات ہیں. اب دیکھیں نا، اب ہم ہندوستان سے بھی بھیک مانگیں گے. ابھی آپ دیکھیں کیا ہوگا. یہ نریندر مودی کی جو دوسری حکومت آئی ہے، اس میں جو اس کی جو پہلی انٹریکشن ہوئی ہے جے شنکر کی، جو ان کے فورن منسٹر ہیں، اس میں ان سے سوال پوچھا ہے پاکستان کا. انہوں نے کہا ہاں ہم پاکستان کو انگیج کر سکتے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے. یہ بڑا ایک کیئرفل ڈپلومیٹک پوزیشن رکھی ہے مودی گورنمنٹ نے، جو بیسکلی امریکنز چاہتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ڈائلاگ ہوگا، ڈائلاگ وہ انیشیٹ کریں گے کہ کراس بارڈر ٹیررزم تو اس وقت پاکستان کی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں. 2021 کے سیز فائر کے بعد سے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان نہیں کروا رہا. کراس بارڈر ٹیررزم پھر دوسری چیزوں کی طرف ڈائریکشن پہ ٹاکس لے کے جائے گی. اس وقت جو پریزنٹ رجیم ہے، ملٹری رجیم ہے، ان کی سب سے بڑی ان کو ضرورت کیوں ہے نواز شریف کی، شہباز شریف کی. جو ہندوستان کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کو ریفرنس بنا کے انہوں نے کہا کہ ان کا ٹویٹ دیکھا، اور پھر پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں انہوں نے اس کا ریسپونڈ بھی دیا. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی ان کی امید یہ ہے کہ ہندوستان سے ہمیں بخشش ملے گی، یہ معافی مانگیں گے، ناک رگڑیں گے. اور انہوں نے اپنا ایک نیا دشمن ری ڈیفائن کر لیا ہے. اب دشمن انہوں نے ری ڈیفائن کیا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی. اس کی جو سب آپٹیمل ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ہر ہفتے آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی اتنے جوان ہمارے شہید ہوئے، اتنے ہم نے دہشت گرد مار دی. ابھی اس کو وہی کہ پاکستانی ذہن کو اتنی کمی رہی ہے انٹیلیجنس کی کہ پوچھیں کہ دہشت گردوں کو مار دینا کس قسم کی اچیومنٹ ہے. اگر آپ ہر ہفتے ہر مہینے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ مزید مار دیے ہیں، کیا مارنا کوئی یارڈ سٹک ہے؟ کیا کبھی امریکن جب انسرجنسیز کا مقابلہ کر رہے تھے، یہ برٹش کر رہے تھے، وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم نے مار دیے؟ یا اس کی یارڈ سٹک یا پیمانہ جو ہوتا ہے اس کو معیار کرنے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس پہ میں ڈسپیوٹ کر رہا ہوں گل سے، پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانے میں پاکستان کی ریاست 77 برس سے اپنے نصاب تعلیم، اپنے ذات ابلاغ، اپنے جوڈیشل ڈیسیجن، اردو کے اخبارات، ہمارا سارا ٹیلی ویژن، اس کا بیسک جو ان کا گول ہے وہ یہ کہ اگر لوگوں میں عقل آ گئی تو پھر یہ جو سب کچھ کھڑا کیا ہوا ہے، جو جھوٹ سنائے ہوئے ہیں، کیسے چل سکتے ہیں. اور اب ہم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو تھوڑے بہت فیکٹس یہاں سے دے سکتے ہیں، اسی فیکٹس دیکھنا. آپ یہ اپنی سب سے بڑی کامیابی دیکھیں کہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ چل رہا ہے 5 لوگوں کا آواز کو دبانے کے لیے. 5-6 لوگ بیٹھے ہیں جو ملک کے اندر ہے، ان کو تو ویگو سے اٹھایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں وہ تو بات بھی نہیں کر رہے. کتنی بڑی ریپوٹیشن کیوں نہیں ہے بعض ویلاگرز کی، وہ بات نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر. ابھی یہ وجاہت نے شروع میں جو اپنی انالیسس دیا ہے، پاکستان کے اندر سے کوئی انالیسس دے سکتا ہے؟ ابھی آپ نے پاسپورٹس کی اور انٹرپول کی جو بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر سے کوئی یہ بات کر رہا ہے، وہ روایتی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 50 ارب روپے کے خرچے میں، یعنی 18-20 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں پچھلے سال میں، جو خبر چھپی ہے اخباروں میں چھپ چکی ہے. ابھی 20 ارب روپے انہوں نے مزید مانگے ہیں. اور جو پیرالل فنڈنگ ان کے پاس ہے منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انٹیلیجنس کی، وہ بھی اس میں لگ رہی ہے. کر کیا یہ رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فائر والز کھڑی کر رہے ہیں. انہوں نے ہزاروں لوگ اس وقت ہائر کیے ہیں، درجنوں ان کی ٹیمز کام کر رہی ہیں مختلف منسٹریز میں. کس چیز کو روکنے کے لیے؟ یہی جو کامنٹ آپ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہیں اور اتنے وولنریبل ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کامنٹ کو، یہ اپنے آپ کو انہوں نے ایکویٹ کرنا شروع کر دیا ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ. سوچتے ہیں جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں اتھارٹیرین رجیم، ان کی کہانی ان سے بالکل ڈفرنٹ ہے. میں اس کی طرف بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بے وقوفی کس دی رہی ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو یہ کچھ فیکٹس دے دوں، اس کے بعد وجاہت کے پاس چلتے ہیں. یہ اقتصادی سروے رپورٹ ہے، اور اس میں ایک سال میں، جو پچھلا سال گزر گیا، اس ایک سال میں جی پنجاب میں سب سے زیادہ شہری جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں. 4,90,000 پنجاب سے گیا ہے باہر، اور خیبر پختونخوا سے گیا ہے 2,11,000، سندھ سے گیا ہے 73,000، اور قبائلی علاقوں سے گیا ہے 37,000. یہ ٹوٹل 8 لاکھ سے زیادہ ہے. جی ہاں، یہ لوگوں کے باہر جانے کا رجحان ہے، جو کہ جا رہے ہیں باہر. اور یہ ہے جو آن دا ریکارڈ ہے، اور وہ لانچوں والے الگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے اور جن کو ہم اسکلڈ پرسنس کہتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں.
باقی آپ نے ایک بات کی تھی، اصل پرابلم یہ ہے، یہ ساری جو ڈائیورجن چل رہی ہے نا، ایک تو بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی ذرا ڈائیورٹ کرنا ہے، ڈسکشن اس طرف نہیں جانی چاہیے. اقتصادی سروے آیا ہے، اس میں ٹوٹل تمام پورا اقتصادی سروے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کیا. اور ایگریکلچر کے علاوہ جی ایگریکلچر میں ہدف حاصل کیا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اس کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں. کسان جو ہے، میں بھی ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہدف صابر اس طرح سے حاصل کیا کہ آپ نے کسان کو ایک فکس پرائس آفر کرنی تھی. آپ نے کسان سے پر میٹرک ٹن میرا خیال ہے 39,000 روپے کا آپ نے اس سے پرومس کیا ہوا تھا کہ آپ اس سے خریدیں گے. آپ نے اس سے فصل تو حاصل کر لی مارکیٹ کے لیے، لیکن آپ نے اس کو ٹھٹویا، آپ نے اس کو فکس پرائس آفر نہیں کی. اور محترمہ مریم معاذ نے کہا کہ ہم نے بڑا عقل مند فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے لوگوں کی ہم نے گندم نہیں خریدی. اب وہ گندم جو ہے آپ کے مڈل مین نے سستی کر کے خرید لی ہے. تو وہ مڈل مین کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ مڈل مین کون ہے؟ وہ مڈل مین ان کے فرنٹ مین ہے. وہ مڈل مین نہیں ہے، وہ ان کے فرنٹ مین ہے. وہ خرید رہے ہیں اور انہی فرنٹ مینوں نے اس کو اسمگل کرنا ہے. انہی فرنٹ مینوں سے یہ 3900 پر 40 kg یہ ان سے پرچیز کریں گے. اور یہ جتنا بھی ہے یہ ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز کا ہے یہ کھاچا جو انہوں نے بنایا ہے. وجاہت صاحب، اچھا ایک سیکنڈ میں ایک کامنٹ اور ایڈ کروں. وجاہت جو نے بھی بات کی، اچھا آپ نے کہا کہ اتنے لوگ چلے گئے ہیں، ہر سال 8 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر پچھلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں صرف یہ ایڈ کر دوں اس کو. دیکھ وہ جو 8 لاکھ سم تھنگ ہے اس کا ذکر کم ہو رہا ہے. اتنے لوگ باہر جا رہے ہیں، پہلے وہ کتنے بڑھ گئے ہیں جو باہر جا رہے ہیں جاب ڈھونڈنے. ذکر اس چیز کا ہو رہا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز میں اضافہ ہو گیا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے. وہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے ایکسپرٹ جو باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اصل ایشو یہ ہے، وہ ایشو کریں گے نہیں، ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں بڑھ گیا. جی اور وجہ نہیں جی، آئی ہیو نتھنگ ٹو سے. مطلب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے ہر چیز بول دی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جانا ہے آگے. ڈاکٹر ان کا اچھا یہ وجہ صاحب یہ بتائیں، عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے مذاکرات کریں. ابھی میں وہ ججز کی ساری گفتگو میں سن چکا ہوں، تو اس میں بھی انہوں نے کہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ، کیونکہ خان صاحب میری اطلاع کے مطابق خان صاحب نے پارٹی کو کہا کہ جناب آپ اپنے شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں. میری رائے تو وہی ہے، یہ آپ کے ساتھ صرف ٹائم گین کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، اور یہ سیریس نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھیں جی، میں جس بارے میں سیریس ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جدھر سیریس موضوع ہوں ادھر میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ ہمارے 4 جوان ہیں. یہ جس رات میرے بہنوئی کو اٹھانے کے پلانز تھے ان کے، اس رات یہ 4 جو جوان ہیں اور ایک کپتان ہے یہ شہید ہوئے ہیں قصور میں. قصور کے لوگ تھے، لڑکے یہ تھے، اور یہ ایکشن میں مارے گئے لکی ورمت میں. جس رات آپ کے شہباز گل صاحب کے بھائی کو اٹھایا جا رہا تھا یا اٹھا لیا گیا تھا، اس رات یہ 3 لڑکے شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جس رات آپ کے اثر مشوانی کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، اس رات لکی ورمت میں یہ ہوا ہے. اور دیگر روز اپڈیٹس آ رہی ہیں. یو ہیو اے ڈے جاب. ان لوگوں کا ایک کام ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ کام یہ لوگ کر نہیں رہے. اینڈ افیکٹولی جو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو مطلب کہ جروسلم کو فتح کر لیں گے اور یہ سب، یہ اٹس نو گڈ. 80s 90s تک آپ نے جہاد بیچا. 2000s میں آپ نے اپنا ماڈریٹ کیا تھا، کون سی تھی؟ انلائٹنڈ ماڈریشن تھی. ٹھیک ہے، چلو وہ جہاد سے بھی ڈالر آئے 80s 90s میں، ڈن ہے. میں بھی ڈالر کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر 2010s میں بھی ڈالر آئے انلائٹنڈ ماڈریشن کے لیے، ڈن ہے جی، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. اب جو ہے آئی ایم سوری ٹو سے پچھلے 10-15 سال سے آپ کی جو بھی آپ فیل ہو چکا ہے. آپ نے 20 سال امریکیوں کے ساتھ منافقت کی، وہ آج آپ کو منہ نہیں لگاتے. آپ نے پچھلے 5 سال سی پیک پہ چینیوں کے ساتھ منافقت کی، انہوں نے آپ کو واپس فارغ کر کے بھیج دیا.
आपकी ये जो मुनाफकत का तमाशा है ये सऊदी अमीराती, कतरी, ओमानी देख रहे हैं, उन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया, राइट? इंटरनेशनली ठीक है, आपको लोग इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपके अलावा आप किसी को, अपने अलावा किसी को लोकली छोड़ते नहीं हैं. मगर आई वुड से कि मोर एंड मोर योर बयानिया इज फीलिंग. ये जो अभी लड़के हैं जिनकी अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये कौन है? ये क्या ये शहीद नहीं है? मगर इन लोगों का, इन लड़कों का क्यों नहीं मेंशन होता? इन लड़कों का इसलिए मेंशन नहीं होता, और मशवानी का और गिल के भाई का और मेरे भाई का इसलिए मेंशन होता है because people are not buying you. People are not buying whatever you're selling. And frankly, that's not my fault. It's not my fault that RSF is not tweeting about you. They're tweeting about me. It's not my fault that committee to protect journalists is not mentioning you. They're mentioning me. It's not my fault कि NATO एक जमाने में, यार NATO का ट्विटर की फीड जाके देखें, एक जमाने में जब वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ था, अरूज पे थी, क्या नहीं था, नेटो पाकिस्तान की मिलिट्री अपडेट्स देता था ऑफिशियली, क्योंकि आप नेटो के अपना नॉन अलाइंड मेंबर थे. इतनी इज्जत आपको ग्लोबल प्रेस में मिलती थी जब आपके लड़के शहीद होते थे इधर ही इसी लकी मरबत के. आज आपको आपके अपने लोग नहीं ट्वीट करते, राइट? तो क्या इन बच्चों ने जिन्होंने रिट्वीट किए में, मेरे 100 रिट्वीट हैं अपना, इसके ये इन बेचारों के 5 हैं. क्या इन बेचारों ने जो शहादतें दी हैं, क्या ये 5 रिट्वीट की है? नहीं, इन्हें तो तमगा मिलना चाहिए. मगर मैं ये गारंटी आपको कह सकता हूं कि हमें भी आप तमगा देंगे, क्योंकि आपको शायद लोग मजबूर करें, कर दें हमें शहीद, कर दें हमारी फैमिलीज को शहीद. पीपल विल फोर्स यू टू गिव अस अवार्ड्स. जैसे आप अपने आप को देते हैं ना, हमें भी आपको देना पड़ेगा, चाहे वो हमारी जुर्रत के लिए हो, चाहे वो हमारी शहादत के लिए हो. तो ये अब हमारा रैप अप हो गया है. मेरा ख्याल है डॉक्टर गिल साहब ने भी निकलना है, मैं आपकी इजाजत लूंगा, बट मेरी तरफ से यही है कि वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन. ये चलता रहेगा. आप पासपोर्ट कैंसिल करने हैं, सबके कर दें, आपने उठाना है और उठाएं. मेरी तो उधर माँ भी रहती है, जाओ जो करना है आपने जाके करें, बट इट्स नॉट गोना हैपन. अगर आप वाकई मर्द के बच्चे हैं, आपको पता है मैं किधर रहता हूँ, आप फोन करें, आप मीटिंग करें. मैं आपके कवर ऑफिसर का नाम मैंने परसों बताया है, जो इधर ISI का कवर ऑफिसर है. इसलिए आपने ये किया है, किस लिए किया है? आपको पता है मैं वही बंदा हूं. मुझे और अरशद शरीफ को हाईएस्ट सिक्योरिटी क्लियरेंसेस फौज ने, ISI ने, IB ने और MI ने साथ दी थी. इसलिए अरशद और मैं इतना ट्रैवल करते थे इनके साथ, फ्रंट लाइंस पे जाते थे, वो कराची से लेकर सियाचिन तक, इसलिए हम दोनों की क्लियरेंसेस थी. उसके साथ जो आपने किया वो एक अलग कहानी है. अब मेरे साथ जो आपने करना है. सो इफेक्टिवली मैं बिल्कुल जातियात पे बात नहीं करना चाह रहा था, मगर सवाल यही था कि why are they getting desperate? They're getting desperate because nothing's working. Economically, nothing's working. Politically, they are illegitimate. Bayaniya-wise, narrative-wise, nobody's listening to them. Internationally, they are feared कि यार ये इतना बड़ा मुल्क है, ये चले जाएंगे तो कौन ये 200 न्यूक्लियर वेपन, कौन ये रॉकेट चलाएगा? वो आया आपके पास, वो आप अपने रॉकेट अपने पास रखें, बिकॉज इंटरनेशनली आपकी कोई वो नहीं रही. So yeah, that's it. You failed and you have to engage the people of Pakistan. And मैं बार बार कहता हूँ, आप दोनों की शायद अलग कहानी है. मुईद आप भी इमरान के आउस्टर और अरशद की शहादत के बाद आए हैं. गिल आप भी जब आए हैं, जब आपके साथ उन्होंने बेहद जातियां की हैं, और साबिर आप भी उसी दौरानिए में आए हैं. मैं तो 5 साल पहले इमरान के जमाने में आया था. मैं जब आया था जब इनका सेम पेज बाजवा साहब के साथ चल रहा था. मैंने स्टोरी की थी बाजवा पे, आज सुन लें कहानी. मैंने स्टोरी की थी बाजवा पे, मुझे उठा लिया था 2 दिन. मैंने आज तक ये बात नहीं की, 2 दिन मुझे उठा लिया. जो उन्होंने किया वो मैं कभी और बताऊंगा. बट मैं जब बाहर निकला, फिर इमरान इलेक्शन जीत गया. जब मैं इलेक्शन जीता, उसने मुझे इस्लामाबाद बुलाया. मैंने फवाद चौधरी के साथ 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते काम किया, दफ्तर में बैठा, PM सेक्रेटेरिएट में देखा मैंने. मगर मैं फिर वापस गया और मैंने अपनी माँ को कहा, मैंने कहा मम्मा मैं पढ़ने जा रहा हूँ. कहती है अभी तो तुम्हें इन्होंने जॉब के लिए बुलाया था. मैंने कहा मैंने देख लिया, उस तरफ वालों को तो मैंने 15 साल से देख रहा हूँ, ये जो हैं, अब मैंने ये 3-4 हफ्ते जो इन्हें देखा है, आई एम गोइंग. एंड यू नो व्हाई? इट्स नॉट कि इमरान कोई करप्शन कर रहा था, इट्स नॉट कि गलत काम कर रहे थे, मगर इनका जो सेम पेज है वो इतना खौफनाक था कि वो मुझे समझ आ गई थी. आई एम सॉरी गिल साहब, मुझे वो मैं उसी दिन उन्हीं हफ्तों में मैंने देख लिया था. ये 18 में इमरान आया है, अक्टूबर नवंबर में मैं इसके साथ था, फवाद चौधरी के साथ था, दोस्त है हमारा. मगर मैंने कहा जी मैंने आपके पास
कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूं और मैं पढ़ने आ गया बिकॉज आई सॉ दिस कमिंग. सो मैं तो किसी से भाग के नहीं आया और वो मेरा मुल्क है और आपने एटीसी पे जो लगाना है लगाएं, म्यूटनी का लगाना है, जो भी यार लगाना है, 110 भी लगाएं या 420 लगाएं, जो भी लगाना है लगाएं, मैं तो वापस आऊंगा क्योंकि मेरा मुल्क है और आपका भी होगा मगर आपके बाप का नहीं है. दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी. थैंक यू. इंशाल्लाह जी, ये आप एक बात ध्यान में रखिएगा, हम फिर भी शर्मो हया वाले लोग हैं आपस की बात में आपको बताऊं. हम फिर भी बात करने से पहले मैं कम से कम 1000 दफा सोचता हूं कि मैं, क्योंकि इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और अभी भी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. इनकी माएँ, बहनें, बेटियां, वो हमारे लिए उतनी ही काबिल कदर हैं जितनी हमारी अपनी. कभी बात करने को दिल नहीं करता, कभी करेंगे भी नहीं. लेकिन ये जो रिजीम है ना जी, ये रिजीम कोई ऐसी बेशर्म रिजीम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते. मैंने आप कभी भी इजहार नहीं किया और मैं इंशाल्लाह जब मैं करूंगा कि मेरे साथ इन्होंने 2 साल 2 महीने इन्होंने क्या क्या किया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते. यानी उस बंदा सोच नहीं सकता कि ये इतने भी गिर सकते हैं. मेरी एक हाफिज़े कुरान बहन है और बापर्दा, कभी इसकी ना उसके पास मोबाइल है ना कुछ है. सबसे पहले इन्होंने ये हरकत की, नादरा से तस्वीर निकाली. मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब, आप माशाल्लाह हाफिज़े कुरान हैं और बहुत मशरकी रिवायात के अमीन हैं और आपने मक्का मुकरमा में तकरीबन गुजारे हैं 8 साल और हमारी आपस में डिस्कशन भी होती रही है. और जब आप DGMI थे उस वक्त भी और DGISI के तौर पे, तो इन्होंने ये इस रिजीम ने क्या किया, लसबेला हेलीकॉप्टर हुआ ना जी हादसा, उसमें मेरी उस हाफिज़े कुरान बहन की तस्वीर नादरा से ली और उस लसबेला हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन में उसको डाला हुआ है. आप तसव्वुर कर सकते हैं ना उसके पास मोबाइल भी नहीं है. ये इतने घटिया लोग हैं. यानी वो जनरल सरफराज का जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसकी इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया हमको जी, उसके इन्वेस्टिगेशन में डाला हुआ है. आप उसकी वो रिपोर्ट पढ़े ना, रिपोर्ट उसमें उनकी तस्वीर नादरा से लेकर डाली हुई है. ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करती रही. जी सोशल मीडिया उनका नाम इसलिए डाला कि ये सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ और सोशल मीडिया पे, ठीक है ना. तो ये यहाँ उस दिन ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये, हालांकि मैं फिर अगेन कहूंगा कि आखिरी जब मेरी हुई ना आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से, आखिरी जो मेरा हुआ, तो इनकी अहलिया हमारी बहन जो है वो भी साथ थी. जब बाजवा साहब के बेटे की शादी उस वक्त हेलो हाय हुई, वो आखिरी थी बनफ्से नफीस. तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से जरा इन लोगों को देखो तो सही, ये कर क्या रहे हैं. ये इस सारी हरकतें, आज मेरी बहन का फोन आया और अब ये पहुंचे हुए हैं मेरे अपने शहर में और वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पे एक हरासमेंट पैदा की हुई है और कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं और वहां पे एक अजीबोगरीब किस्म का माहौल खड़ा किया हुआ है. मैं ये कहता हूं कि ये कर क्या रहे हैं, इससे क्या हासिल क्या होगा. मैं भी, जो आपने बात की ना, मैंने भी वापस ही जाना है. मेरे पास भी कोई और पासपोर्ट नहीं है. अभी 2 साल पहले मैं बात बता रहा था ना कि एक हमारे ऑफिस में ARY में आए 2.5 साल पहले एक दोस्त, तो उन्होंने कहा कि फलां मुल्क का पासपोर्ट जो है वो मिल रहा है तो आप अवेल कर लें. तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, तुम बड़े बेशर्म आदमी हो, तुम गद्दार इधर आ गए हो, मेरे दफ्तर में आके ये बातें कर रहे हो. खबरदार, आज के बाद ये आपने बात नहीं करनी. तो उस वक्त वो पासपोर्ट मिल रहा था कोई 10-15 हज़ार का. तो पिछले दिनों $10-15,000 का मिल रहा है यार यूरोपियन यूनियन का. जी यस यूरो का. तो उसने कहा जनाब अब वो मिल रहा है कोई 30,000 का हो गया, अब आपने लेना है. मैंने कहा उस वक्त नहीं लिया. तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने तो अभी तक कोई बात इसलिए नहीं करते जो पिछले 2 साल 2 महीने ये कर चुके हैं
کہ ہم کریں گے تو ہم کیا کہیں گے باہر بیٹھ کے؟ ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، ان کو اس حد تک ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، اور یہ قومی سلامتی کا مسئلہ اس وقت بنایا ہوا ہے انہوں نے. وجاہت سعید خان قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر موحید پیرزادہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، صابر شاکر قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر شہباز گل قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، شہزاد پورا اکبر ٹویٹر صاحب، سلامتی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر شہزاد اکبر وہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ 8-10 بندے قومی سلامتی کے مسئلے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 8-10 آدمی، اگر 8-10 آدمیوں کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں ہے، ہمیں صرف سمجھا دیں کہ جی آپ کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں بھی چھوڑ دوں گا. اور وہ جو 21 اسیسینیشنز کر دی پاکستان کے اندر ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ٹارگیٹڈ، وہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو مبارکیں دے رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. ایک دفعہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ذکر قومی سلامتی کا مسئلہ ہوں صابر. ایکچولی میں آج اقبال جرم کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی قوم کو سلام کرتا ہوں، اس لیے شاید جو یہ نہیں کرتے، تو میں تو بہت بڑا مسئلہ ہوں ان کے لیے، بیکاز میں واقعی اپنی قوم کو سلام کرتا ہوں. تو قوم کو سلامت اللہ رکھے، آپ سب کو بھی. اینڈ اس کے علاوہ اس پہ میرا خیال ہے اب زیادہ اس سے بولنا اب کیا ہے. ون تھنگ آئی کین گارنٹی یو، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں گینگ آف 4 کے دیگر ویورز، میں آپ سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بیک ڈاؤن، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ، دے آر ناٹ گونا گو کوائٹ. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. دس از گارنٹیڈ ایٹ لیسٹ فرام مائی اینڈ. سو let's wrap it up, guys. I know Gail has to go as well. So let's wrap it up and let's try to do this again. بہت لوگ صابر بھائی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم ریگولر نہیں ہیں. موحید آپ غائب رہتے ہیں. نیکسٹ باری میرا خیال ہے آپ کی. ہاں 30 سیکنڈ جی لاسٹ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب. دیکھیے، میں آپ لوگوں نے کیونکہ بڑی ایموشنل باتیں کی، اور آئی کوڈ فیل دیٹ. ایموشنل مین کہ آپ نے ایموشنلی فیل کر کے وہ باتیں کی، اسپیشلی جو آپ نے اپنی بہن کا واقعہ سنایا. اور یقین کیجئے کہ بہت ساری باتیں، حکومت میں رہے ہیں، بہت کچھ پتا ہے، اپنے ساتھ جو کچھ ہوا بہت کچھ پتا ہے. یہاں آ کر ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ لانگ رن میں سوچتے ہیں پھر کہ ہمارا ملک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے، ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں شرم و حیا رکھتے ہیں، اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا، وہ میرے ایک کزن کہتے ہوتے ہیں، شکاگو کے قریب ایک علاقہ ہے کینککی، ان کے گاؤں کا نام ہے کانا. وہ آج کل کتاب لکھ رہے کانا ٹو کینککی. تو میں جنرل آصف منیر صاحب کو بتاتا ہوں کہ آپ تو پڈی میں رہتے تھے جناب، میں تو فیصل آباد کی ایک کھڈ میں سے نکل کے آیا ہوں. اور یہ جو اوپر صابر شاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے، یہ کمان کے دو طرف جو لوگ بیٹھے نا، ان کو تو اچھی سکولنگ ملی ہوئی ہے. ہم یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں اور صابر شاکر صاحب، ہم تو ٹاٹ کے اسکول سے آئے جناب. 30 کی کلاس تھی پرائمری میں، اور ان میں ہم 3 ہائی اسکول میں گئے تھے، اور ہائی اسکول میں سے اکیلا میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے FSC میں گیا تھا. تو 30 میں سے سروائیول ریٹ 1 تھا. پھر وہ 3 میں آگے چلا گیا میں، اور 3 میں آگے گیا. تو اس کے بعد ہم 3 گئے، مطلب 3 کے بعد میں 1 آگے گیا. اس کے بعد میں اکیلا ہی پتہ نہیں کس طریقے سے یونیورسٹی آف الینوائے اربانہ شیمپین میں پروفیسر بنا. پھر عمران خان نے کہا میرے ساتھ آؤ، پاکستان بہتر کرو، ہم ادھر چلے گئے. پھر آپ نے ہمیں ننگا کر کے کٹ چڑھائی. میں نے آپ سے پوچھا کہ اب شلوار پہن لیں یا ابھی بھی آپ نے سیاست میں حصہ لینا ہے. اس پر آپ نے 2 درجن اور مقدمے بنائے. پھر چلیں کسی طرح سے ہم یہاں آ گئے. پھر ہم نے یہ بولنا شروع کر دیا. تو جناب ہم تو وہ والا مزائل ہیں جو فائر ہو جاتا ہے، پھر اس نے کہیں نہ کہیں جا کے ہٹ ہونا ہے. واپسی والی چپ ہم میں لگی نہیں سر کوئی نہ، کیونکہ 75-76 سال پہلے جب اسماعیل گل صاحب، جو میرے دادا میرے والد نذیر گل کو لے کر وہاں سے نکلے تھے، کو میرے والد کی عمر چند برس تھی، تایا، والد اور میری پھوپھیاں، ان کو لے کے جب وہ وہاں سے نکلے تھے، تو وہاں پہ تو ہمارا کام ٹھیک تھا، زمین شمین ٹھیک تھی، وہ سب وہاں پر لٹ پٹ گئی. یہاں آئے تو آپ نے زمین ہمیں دی بنجر. اس کے اندر جو بھی ہم کر سکے، جس بھی طریقے سے معاملات اپنے چلا سکے، چلا کے ہم پہنچے ہیں جناب یہاں تک. لوور مڈل کلاس سے نکل کر یہاں تک ہم نے اپنا کام کسی نہ کسی طریقے سے جنرل آصف منیر صاحب چلا لیا ہے. اب اس مزائل میں یقین کیجئے
वापसी की चिप नहीं लगी हुई। एक आपने मेरे भाई को अपने पास रखा हुआ है, उसमें भी वापसी की चिप नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो भी अंदर से मुझे, वो भले आप उस पर तशद्दुद करके उसको बयान लेंगे, कुछ कहेंगे, कोई उस पर झूठे मुकदमे बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उसको अंदर से पता है कि उसको आप कुछ भी करेंगे, उसको पता है मेरी मजबूरी है, वो मेरा भाई है, उसको पता है इसने नहीं मुड़ना, क्योंकि यकीन करें सॉफ्टवेयर में वापसी की चिप नहीं है। इसीलिए जब आप लोगों से मोहब्बत की तो अंधी की है, हम चारों ने एक ही तरफ की है। अब आपने जबरदस्ती पकड़ के हमारा रुख मोड़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरफ को आप भेजेंगे जनाब, हमारे तो पीछे लगी हुई है आग। जब जिन्हों दे जमे हैं काबल दे जमिया नू नित महिमा, तो साडे पीछे तो लगी है जनाब अग, ते असी अगे नू जाना है जिधर नू जाना है। सो आपका फैसला है जनाब, आपने जहां तक जो करना है आप कीजिएगा। जैसे उन्होंने कहा बैकआउट होने वाला सवाल नहीं है, कुर्बानी देनी पड़नी है, अंदाजा हो गया हुआ है, पहले का ही हो गया हुआ है, कुर्बानी देंगे। और मैं आपको पहले भी कहा कि मुझे इमरान खान के अलावा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा, कोई मेरे ज़हन में लाला लैंड नहीं है। वो जो वजाहत आपने ठीक बात की, एक पेज वो बड़ा खतरा, वो भी इमरान खान कोशिश कर रहा था। मतलब टैक्सी के अंदर अगर एक बंदा गन लेके बैठ गया है और वो ड्राइविंग सीट पे भी है, तो आप एक तो तरीका है दरवाजा खोल के छलांग मार दें, और जो बच्चा बैठा हुआ है साथ में, कौम बैठी हुई है, उसकी जिंदगी भी दाव पे लगा दें। और दूसरा ये कि आप उसे समझाएं कि यार तू भी हमारा भाई है, गन बाहर फेंक, अच्छे तरीके से गाड़ी चला, तू लगा म्यूजिक, ठीक है ना, मैं तेरे कंधे शंधे दबा देता हूँ यार पीछे से, तू अच्छा म्यूजिक लगा, हम यार ये चिप्स की बोतल, ये चिप्स का पैकेट खोल, कोक खोल, हम ये एंजॉय करते हुए राइड करते। इमरान खान वाज ट्राइंग दिस, तो मुझे फेथ इमरान खान पे है। बाकी तो मैंने आपको बताया कि जो हालात पैदा हुए हैं वो ऐसे ही हैं। आप देखें ना, आप बाहर बैठ के बात करते हैं तो आपके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं, उधर लोग ऐसी ऐसी भड़कीली तकरीर करते हैं जनाब, उनकी गाड़ी के ऊपर मट्टी नहीं पड़ती। तो आप लाइक देयर इज अ मेथड बिहाइंड द साइड दिस होल मैडनेस ना, कि जनाब साबिर शाकिर साहब की बहन को नहीं बख्शा जाता। मसलन क्या साबिर शाकिर कभी जुर्रत कर सकता है कि वो आसिम मुनीर साहब की बहन के बारे में कोई ऐसी बात करें जो ये अपनी बहन के बारे में, या मैं कर सकता हूं या आप कर सकते हैं। आसिम मुनीर साहब को रहने दें यार, कोई बंदा हो पाकिस्तान का, कोई बंदा, वो कांस्टेबल हो, वो आर्मी चीफ हो, वो कमिश्नर हो, बहनें तो साझी होती हैं। लेकिन मामले हम किधर ले गए हैं, और आप हमें लगता है कि इसके बाद दिलों के ऊपर मरहम रखे जाने हैं। ये काम अभी भी वक्त है। मैंने कल नईम बुखारी साहब को सुना, आप लोग भी सुनिएगा। जी सुना। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी, वैसे तो उनकी बहुत पाकिस्तान के लिए खिदमात है, मैं उनका बहुत ही, उनके साथ जब कभी निशस्त हुई वो भी बड़ी मजेदार हुई, खुली बातें करने वाले आदमी है। लेकिन मेरे ख्याल में जो नेशनल सर्विस, वो 4 मिनट जो मैंने उनके सुने हैं, उसमें जो उन्होंने नेशनल सर्विस दी है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, खुदा का वास्ता, आपसे उम्र में बड़े हैं, तालीम में बड़े हैं, एक्सपोजर में बड़े हैं, हमें नहीं तो नहीं बुखारी को सुनिए और कोशिश कीजिए, उस पर अमल कीजिए। हमें छोड़ दीजिए साइड पे, हम हो सकता है कि ये 5-7 बुरे हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो कोई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कीजिए ना, ये किस तरफ हम चल पड़े। बहरहाल मेरी तरफ से इतना है। डॉक्टर साहब नहीं कुछ भी ऐड नहीं करना, मैं इसको सम अप कर रही हूं, आप कर लें, कंक्लूड कर लें। मैंने ऐड करना है। मेरा एडिशन ये है कि एक तो मेरा एडिशन बड़ा सिंपल है जी, कि टू सेकंड व्हाट गिल हैज सेड, बहुत सारी कहानियां हैं जो आती हैं, रोज आती हैं, आपकी सर्विस के अंदर से आती हैं, आपके सर्विस के इर्द गिर्द से आती हैं, आपके घरों से आती हैं, जो हम नहीं करते बिकॉज हम लॉन्ग टर्म मुल्क का सोचते हैं। वो मशहूर ज़माना एक प्रेस फ्रीडम पे इधर एक जजमेंट है ऑलिवर वेंडल होम्स की, कि कैन यू शाउट फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, कि क्या एक सहाफ़ी जो है हर चीज़ लिख सकता है, हर वक्त लिख सकता है, हर वक्त कह सकता है? नहीं, उसमें लार्जर इश्यूज आर एट स्टेक। मगर मैं आपको गारंटी करता हूँ, वो अगर आप उस बात की इज्जत ना करें तो कम से कम, क्योंकि आपकी अंग्रेजी ABC से ज्यादा नहीं चलती, तो मैं खाली A, B और C करूंगा आपके लिए, ताकि इधर आपकी गिनती खत्म हो जाए। और ये व्लॉग भी ये अल्लाह के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। A फॉर अल्लाह, नॉट A फॉर आर्मी, पहले तो ये समझ जाए। B, बैकआउट नहीं होना, किसी सूरत में नहीं होना। आई एम नॉट दैट गाय। हम सब की फाइलें आपके पास हैं, हम सब की सिक्योरिटी क्लियरेंसेज आपके पास हैं, आपने हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स किए हुए हैं। मैं वही बंदा हूं जिसको आपने सिक्योरिटी क्लियर किया था, मैं वही आदमी हूं जिसको आपने मुल्क की वो सबसे दूर वाली चोटियों पे और महाजों पे आपने भेजा हुआ है, बिकॉज आप मुझे ट्रस्ट करते थे, बिकॉज मैं कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं था। आपने किसी और जर्नलिस्ट को अरशद शरीफ के अलावा नहीं भेजा उधर। जिधर मैं गया हूं, जो मैंने देखा है वो किसी और ने नहीं देखा जो जिंदा हो।
इसका ये मतलब आपके लिए होना चाहिए आई एम द सेम गाय, मैं वही आदमी हूँ, मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस जिस बेसिस पे आपने भेजी थी उसी बेसिस पे आप आई एम द सेम गाय, नॉट कॉम्प्रोमाइज विद ऑल, कोई कनेक्शंस नहीं है किसी से। और तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंटली, सी there is no crackdown of any sort, there is no coming back for you of any sort if you keep on doing this. You have to, कोई इसका solution नहीं है boss, the solution has to come from within. तो crackdown जो आपका है ना सी, उससे कुछ होना नहीं है, nothing's going to happen out of that. Come up with a better solution, that's it. ये काम नहीं कर रहा कोई, आपकी जो भी आप बेच रहे हैं मंजन वो कोई नहीं बेच रहा, वो कोई नहीं खरीद रहा, that's it. थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सबका। और हम आखिर में मैं यही कहूँगा कि रिकंसिडर करें, और अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो सबको पाकिस्तानी समझें और सबको मुहिब वतन समझें, खा उसने किसी ने वर्दी पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई। तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, और ये तबाही जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमने बहुत कुछ मुख्तसर सी ज़िंदगी है, लेकिन काफ़ी लोगों को हम देख चुके हैं, उरूज भी देखा है और ज़वाल भी देखा है। लेकिन जो कुछ आजकल हो रहा है या पिछले 22-24 महीनों में, और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, ये मनाजिर हमने पहले कभी नहीं देखे और ये किसी ने भी नहीं देखे। इसलिए जनाब हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम अपना काम जारी और सारी रखेंगे और अपनी बात कहते रहेंगे, क्योंकि मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।